हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो चैप्टर नंबर 13 है, जिसमें आज हम करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी यातायात तथा संचार के साधन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये चैप्टर कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो एनआईएस पढ़ते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, और साथ में जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। इसमें आज हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक टॉपिक पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान एनआईएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next here, air transport. Air transport is the most important transport here. Do you wish you fly like a bird? By the railways, you can reach at the destination quickly and without encounter any occurring traffic. Our modern day airplanes are designed by their Wright brothers in 1903. Wright brothers is a 1903. There is a most important invention here of Wright brothers is a 1903. Air transport in India is began in a 1911. 1911 there is a most important for the air transport beginning in India. Today it is one of the important means of transportation like railways and there's a roadways. India has a facility of both domestic as well as international airways. Let us discuss its importance in the modern age. On your screen, there is the most important way here, mode of airways. Airways is the most important here. A fly in the like a birds type. There is the most important on the sky fly of the bird. There is a mode of airways. Airways is a faster ways on the domestical and international way. This is important here. Air transport is a considering that is a bird is becoming a global village. It is the fastest mean of transport and one can be reached the destinations is the few here, covering the distance of 100 of kilometers. It is a free from the surface hindrance such as a insnable mountain, dense forest, and marshes land for the flooded area. It is the most important due to the utility of national defense. It is also connect to the country of different continent is making Earth as a global village. It is suitable for transporting fruit, vegetables, high value goods like costly drugs and the sophisticated machines and designed a time frame. The important here. It is a very useful at the time of natural or any other climates for the saving people, for supplying goods for their basic requirement immediately. The only drawbacks it is a high cost of traveling or transportations. That is why it is still out of reach of the common man. In the last few years, the use of air transport has recorded as a rapid increase. There is the most important here. Air transport service India can be classified into following category. There is a domestical and international service. Domestic and international service are provided by the government and private providers. Pawan Hans Helicopter Limited is a government undertaking. Pawan Hans
Helicopter Limited is a government undertaking. This companies provide air transport to the oil and natural gas corporation and Indian Oil, and there is a northeastern part of country. That's important here. उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है वायु मार्ग। वायु मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं पहले के समय में जब पुष्पन विमान थी तो लोग सोचते थे कि ये पुष्पन विमान कैसे उड़ा होगा। रामायण के पात्रों में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो रावण के पास जो था एक पुष्पन विमान थी, तो बहुत ही सोचा जाता था कि आखिर ये पुष्पन विमान कैसे चलती थी। लेकिन जब कहते 1911 में भारत में ऐसा ही पुष्पन विमान आया तो लोग देख के हैरान हो गए, और इसका इन्वेंशन जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो 1903 में किया गया। कहते हैं वायु मार्ग की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। बहुत सुचारू रूप से जो लोग हैं यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर यही विडंबना होती है कि काफ़ी ये महंगी पड़ती है। क्या आप पक्षियों की तरह उड़ना चाहते हो? हर लोग जो है पक्षियों की तरह उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये संभव है। लेकिन कहते हैं अगर हम उड़ नहीं सकते लेकिन किसी चीज़ में बैठ के उड़ तो सकते हैं ना। वायु मार्ग द्वारा बिना किसी रुकावट के आप शीघ्र अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। हमारे आधुनिक हवाई जहाज़ को जो 1903 में राइट ब्रदर्स ने डिज़ाइन किया था, यानी राइट ब्रदर ने जो है हवाई जहाज़ का डिज़ाइन किया था, और भारत में हवाई जहाज़ परिवहन 1911 में शुरू किया गया। आज यह सड़क और रेलवे परिवहन की तरह महत्वपूर्ण यातायात का साधन बन चुका है और भारत में दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। दोनों सुविधाओं के रूप में अच्छी तरह से अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू वायु मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आधुनिक युग में इनके महत्व पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, तो बने रहे आप तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। हवाई जहाज़ से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। आप देख सकते हो कि इसका डिज़ाइन बिल्कुल ही पक्षियों की तरह की गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये उड़ान बेशकली महंगी पड़ती है लेकिन बहुत ही कम समय पे आपको जो है अपने स्थान पे पहुंचा देता है। आज के समय में देखा जाए तो कहते हैं समय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, और समय को जो बचा ले समझिए वो आगे बहुत ही महानता की सीढ़ी चढ़ सकता है। तो जहाज़ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण परिवहन है जो समय की बहुत ही बचत करती है। बेशक इसमें पैसे अधिक खर्च होते हैं लेकिन समय का बचत इसमें बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। हवाई परिवहन के द्वारा संसार एक वैश्विक गांव बनता जा रहा है और यह परिवहन का सबसे तेज साधन है, और कुछ घंटों में गंतव्य स्थान के सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय किया जा सकता है। यह दुर्गम पहाड़, घने जंगलों, दलदली भूमि या बाढ़ क्षेत्रों के रूप में किसी भी अवरोध से मुक्त है, और यह राष्ट्रीय रक्षा में अपनी उपयोगिता के कारण सबसे महत्वपूर्ण है। इवन कि यह युद्धों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। पृथ्वी को एक वैश्विक गांव बनने में विभिन्न महाद्वीपों को जो है देशों को एक जोड़ता है, यानी ये कि ऐसा ही परिवहन है जो पूरे विश्व को जो जोड़ने का काम किया है। और ये समय सीमा में महंगी दवाइयाँ, आधुनिक मशीन, फल, सब्जियाँ एवं उच्च मूल्य के सामान को ये परिवहन बहुत ही आसानी तरीके से कर देता है। यह प्राकृतिक या किसी अन्य आपदा में लोगों को बचाने और उनकी ज़रूरतों को सामान तुरंत आपूर्ति के लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनके जो है मार्ग में कोई पहाड़ रुकावट नहीं बन सकती है, कोई जंगल रुकावट नहीं बन सकती है, कोई बाढ़ इसका जो है रुकावट में बाध्य नहीं बन सकती है। यात्रा उच्च लागत की एकमात्र कमी है कि उच्च लागत होती है, इसी वजह से इसका जो है लोग अभी अधिक मात्रा में जो है उपयोग नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि यह अभी भी साधारण व्यक्तियों के पहुंच से काफ़ी बाहर है। साधारण व्यक्ति इनका उपयोग आज के समय में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है। पिछले कुछ वर्षों में हवाई परिवहन के प्रयोग में तीव्र वृद्धि की दर्ज की गई है और बखूबी आने वाला समय में जो है आम व्यक्तियों की पहुंच तक भी बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा। भारत में हवाई परिवहन सेवाओं के निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें है घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय सेवा। कहते हैं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवा सरकार की प्राइवेट द्वारा प्रदान किया जाता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर जो लिमिटेड सरकारी उपक्रम एवं कंपनियां और तेल, प्राकृतिक गैस निर्माण, इंडिया ऑयल और देश के आपूर्ति भाग में हवाई परिवहन का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक था, काफ़ी ज़रूरी था। अगर आपको समझ में आया, अगर आपने घरेलू परिवहन के बारे में जाना, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के बारे में जाना, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि त्रिपाण सेंटर जो है 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं। और सोचिए, जो वीडियो अगर बीच बीच में डाली जाती है जो महत्वपूर्ण होता है, कभी क्वेश्चन आंसर डाली जाती है, कभी किसी क्लास के, कभी 10वीं के लिए, कभी 12वीं के लिए, तो शायद आप इस क्वेश्चनों से अनभिज्ञ रह जाइएगा। तो इससे अच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब पढ़ना है तो काहे को सोचना है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सोचने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में रखना है। जो टॉपिक आपके ज़रूरत का होगा उसको देखिए और आगे बढ़िए। सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।